معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بسم اللہ کی تعارف اور حروف ابجد کی تحقیق پہ روشنی ڈالیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگ بسم اللہ کی تعارف دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے سے مراد سے، اسم کا مطلب نام، اللہ اللہ، رحمان رحم والا، رحیم رحم کرنے والا، اللہ کے نام سے جو رحم والا رحم کرنے والا ہے۔ نمبر 1، قرآن کریم کا پہلا جملہ جو ہر سورت کی آیت ہے سوائے سورہ توبہ کے، اس کو تسمیہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قرآن کریم میں 114 مرتبہ آیا ہے۔ تیسرا نمبر، سنن ابو داؤد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحیح ابن خزیمہ میں ام سلمہ سے روایات ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ سے قبل اس کو پڑھتے ہوئے سنا ہے، یعنی بسم اللہ کو پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ نمبر 4، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ و امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کو کسی سورت کی آیت نہیں مانتے۔ نمبر 5، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صرف سورہ فاتحہ کی آیت مانتے ہیں، کسی اور سورت کی نہیں مانتے۔ نمبر 6، ابو داؤد کا ماننا ہے کہ ہر سورت کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل، ابو بکر رازی، ابو الحسن کرخی جو امام ابو حنیفہ کے ساتھی تھے، سورہ فاتحہ کی آیت ہونے یا نہ ہونے کی بحث میں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوتے اور کراتے وقت بسم اللہ سے ملتے جلتے الفاظ کہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ سبا کے لیے جو لکھی گئی تھی، اس کی شروعات بھی اسی بسم اللہ سے ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب باب 18-19 میں یہ الفاظ یعنی کہ بسم اللہ وارد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہر مشکل کی آسانی ہے۔ عثمان ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بدن کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو بسم اللہ پڑھ کے وہاں ہاتھ رکھے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ اب تھوڑی سی ایک غور و خوض کی باتیں ہیں۔ مصر کے ڈاکٹر رساد الغلیفہ نے امجد کی روح سے اعداد 786 بنایا، جو قرآن و حدیث کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ اب ذرا ہم لوگ حروف ابجد کی تحقیق کرتے ہیں۔ حروف ابجد، ابجد، حوض، حتی، کلمن، صافش، ارسط، سخص، ززق۔ اس میں الف بے جیم دال، ہے واو زے، ہے تے تو یہ، کاف لام میم نون، چھوٹی سین عین فے صاد، قاف رے بڑی شین تے، سے خے زال، زاد زو غین۔ اب اس کو دیکھتے ہیں سیریلی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ 10 کے بعد پھر 10 گنا ہی چلے گا۔ 10 کے بعد 20 30 40 50 60 70 80 90 100۔ 100 کے بعد 100 گنا ہی چلے گا۔ 200 300 400 500 600 700 800 900 1000۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے، بے اور پے دونوں کا 2 ہوتا ہے، تے اور ٹے دونوں کا 400 ہوتا ہے۔ حمزہ، الف، الف مد آ،
तीनों का एक होता है। काफ और गाफ दोनों का 20 होता है। जे बड़ी जे का 7 होता है। हे दुचस्मी है का 5 होता है। जीम और चे का 3 होता है। वाव हमजा वाव का 6 होता है। रे और रे का 200 होता है। दाल और डाल का 4 होता है। छोटी ए बड़ी ए का 10 होता है। ये हुरूफ अबजद है। इस हुरूफ अबजद से हम लोग तरह तरह के नाम को ऐड करते हैं, नाम को बनाते हैं। अब हम लोग सबसे पहले फोकस इस बात के लिए देते हैं कि आखिर गौर की जाए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि 786 होता है या नहीं होता है। इसको गौर करते हैं। तो गौर करने के लिए थोड़ी सी इधर गौर करेंगे। बिस्मिल्लाह, बे सीन मीम अलिफ लाम लाम है। बे का 2 होता है, इस चार्ट से देख लेंगे। बे का 2 होता है। सीन का 60 होता है। मीम का 40 होता है। अलिफ का 1 होता है। लाम का 30 होता है। लाम का 30 होता है। हे का 5 होता है। टोटल मिला के 168 हुआ। बिस्मिल्लाह का 168 हुआ। रहमान, अल रहमान, अलिफ का 1 होता है। लाम का 30 होता है। रे का 200, रे 2 बार आया तस्दीद होने की वजह से। रे का 200, हे का 8, मीम का 40, नू का 50, टोटल मिला देने के बाद 529 हुआ। रहीम, अलिफ का 1, लाम का 30, रे का 200, रे का 200, हे का 8, ये का 10, मीम का 40, टोटल मिला के 489। अब गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 168 प्लस 529 प्लस 489 इस तीनों को जोड़ने के बाद 1186 आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा आदाद 786 नहीं होगा, 1186 होगा। अब हम गौर करते हैं कि आखिर लिखने वाले ने 786 कैसे बना दिया। तो थोड़ी तहकीक के बाद हमने ये छानबीन किया है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जिसने भी बनाया है, यानी कि मिस्र के डॉक्टर रसादुल गलीफा ने बनाया, वो इस तरीके से बनाया जिस तरीके से मैं अभी बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाह, बे के 2, सीन के 60, मीम के 40, अलिफ के 1, लाम के 30, लाम के 30, हे के 5, 168। जैसा कि पहले भी बिस्मिल्लाह का 168 था। अब देखिए अल रहमान, हिर रहमान नहीं, अल रहमान, अलिफ का 1, लाम का 30, रे का 200, हे का 8, मीम का 40, नू का 50, टोटल मिलके 329। अल रहीम, निर रहीम नहीं है, अल रहीम, अलिफ का 1, लाम का 30, रे का 200, हे का 8, ये का 10, मीम का 40, टोटल जोड़ने के बाद 289। अब यहाँ लिखते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम 168 प्लस 329 प्लस 289 बराबर 786। ये 786 हुआ बिस्मिल्लाह अल रहमान अर्रहीम का, बल्कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नहीं, बिस्मिल्लाह अल रहमान अर्रहीम का हुआ 786। एक चीज और तहकीक करने के बाद हमको पता चला कि एक और नाम को जोड़ने के बाद भी 786 आ जाता है। जैसे हरे कृष्णा, हे के 5, रे के 200, ये के 10, तीनों मिला के 215। कृष्णा, काफ के 20,
रे के 200, बड़ी सीन के 300, नू के 50, अलिफ के 1, यानी कि 571। तो हरि कृष्णा 215 प्लस 571 बराबर 786। हरि कृष्णा का भी 786 आता है। अब थोड़ी सी हम देखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को ऐड किया गया है। मीम हे मीम दाल, मीम के 40, हे के 8, मीम के 40, हे दाल के 4, टोटल मिला के 92। मोहम्मद के नाम से 92। अगर हम सिर्फ 92 लिखते हैं तो सिर्फ मोहम्मद होता है। अब बताइए क्या ये मुनासिब है कि मैं सिर्फ मोहम्मद लिखूं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना ही दुरुस्त है, सिर्फ मोहम्मद लिखना दुरुस्त नहीं। इसलिए 92 भी मुश्किल में है। तो अब हमको ये तजवीज़ करना है, तहकीक करना है कि क्या मुनासिब है, क्या गैर मुनासिब है, क्योंकि सारी तहकीक को हमने आप लोगों के सामने रख के पेश कर दिया है। ये हुरूफ अबजद है, यहाँ से यहाँ तक अगर जहन में रहे तो आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी नेम का नंबर पे अगर हम लोग तजवीज़ करें तो मुनासिब नहीं होता कि वह नंबर किसी और का नंबर नहीं होगा, इसलिए नंबर का इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। और मैंने कुछ तजवीज़ करके, तहकीक करके कुछ मिसालें आपके सामने पेश कर दिए। अब इसमें आपको तहकीक करनी है और तजवीज़ करनी है कि कौन मुनासिब कौन गैर मुनासिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।